Yes, ma'am. Yes, beta. Question number 13. 13 number question. And okay, sir, please be quiet. Yes. Assertion. Magnets can attract certain objects without direct contact. Reason. Magnets create a magnetic field that can exert force on objects within their influence. So, ma'am, fun with magnets. Fun with magnets. Ma'am, magnet can attract certain object without direction. Reason. Magnet create a magnetic field that can exert force. Okay, section A. Baki students, please be quiet. Let's keep quiet. Yes, beta. Option A. Yes, both are correct. That's good. Sit down. Sit down. So coming to 14 question and for this 6B से आ जाओ गुरकिरण कौर. 6B Gurkiran Kaur. So the assertion is breaking a bar magnet into two pieces will result into two new magnets, each with a north and south pole. And the reason is magnetic poles always exist in pairs and you cannot have a single pole without its opposite. Ma'am, A is true. Magnetic poles always existing. Ma'am, option A. Yes, both are correct. If we break magnet, so the magnet that we are getting now, they also act as an individual or normal magnet. Okay, that are having both north and south pole. Now coming to 15th question, assertion. High temperatures demagnetize the magnet. So 6C से आ जाओ. 6C से आ जाओ अनुष्का. अनुष्का रे. M is true and R is false. Yes, that's good. So high temperature demagnetize the magnet. Reason is wrong. So reason is saying we can never make magnets from iron bar. We can make it. है ना? हमने last time किया भी था कि हम बना सकते हैं. ठीक है? So 16th के लिए आ जाओ. C section से ही आ जाओ. Just neat core. Just neat core. So 16th number question assertion: a freely suspended magnet never aligns itself along north-south direction. Reason: the Earth itself acts like a giant magnet with its magnetic north pole located near the geographical north pole. Ma'am, option B. Yes, beta? Ma'am, option B. Whether the assertion is right or wrong? Ma'am, true. It's false. बेटा north-south direction नहीं होता. Freely suspended magnet कौन से direction में align करता है? हमने directional property की थी इसकी magnet की. So in which direction it align? It's in north-south direction. Ma'am, option C. Reasons the Earth itself act like a giant magnet with its magnetic north pole located near the geographical north pole. ऐसा होता है? The Earth is a giant magnet with its magnetic. अर्थ और अर्थ के अंदर हम मैग्नेट ऐसे दिखाते हैं. ठीक है? सपोज दिस इज Ma'am, ज्योग्राफिकल नॉर्थ. ज्योग्राफिकल नॉर्थ क्या हो गया? अर्थ की बात कर रहे हैं अभी हम. सपोज बोले ये अर्थ का नॉर्थ पार्ट है. ठीक है? ज्योग्राफिकल जमीन. ठीक है? एंड दिस इज
ज्योग्राफिकल हाउस, ठीक है। अब जो ये मैग्नेट हम कहते हैं कि अर्थ के अंदर है, ठीक है, दैट इज इनसाइड द अर्थ। बेटा ये भी यहाँ पर क्या है, नॉर्थ साउथ की साइड है, तो ये साउथ ऑफ मैग्नेट हो गया, इट्स नॉर्थ ऑफ मैग्नेट हो गया। अगर अब हम कोई फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट लेते हैं, ओके, फ्रीली सस्पेंडेड, तो इसका अगर अर्थ का यहाँ पर जो मैग्नेट है अगर वो यहाँ पर नॉर्थ है तो इसका यहाँ पर साउथ होगा, इसका अगर यहाँ पर साउथ है तो इसका नॉर्थ होगा, ठीक है। सो ठीक है, जो मैग्नेट है फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सस्पेंड होगी, ठीक है। सो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रही है, नहीं होगी, तो दैट इज फॉल्स। रीजन इज ट्रू बट वो उसके लिए नहीं है, ठीक है। रीजन वो क्या कह रहे हैं कि अर्थ का जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है वो मैग्नेट जो अर्थ का है उसके साथ होता है, अगर ये नॉर्थ है तो ये नॉर्थ है, तो दैट इज ट्रू। अगर ये साउथ है तो ये साउथ है, ठीक है, दैट इज ट्रू। यस और नो? Ma'am, yes. So this is what it is meant, ठीक है, sit down. So now come to next, ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। इफ ए मैग्नेट, ये हमने क्वेश्चन किया था शायद, हमने लास्ट टाइम कर लिया क्वेश्चन सब्जेक्टिव, सही है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए थे आंसर, Ma'am, yes. ये हमने कर लिए थे सारे, Ma'am, ओके, क्योंकि मुझे भी याद आ रहा है कि वी हैव डन दिस, ठीक है। तो मगर नेक्स्ट पेज के शायद से नहीं किए थे, है ना। ये सेवंथ, जो सेवन से स्टार्ट हो रहा है ना आपके पास ये क्वेश्चंस, या आपके लास्ट पेज में बेटा क्वेश्चंस हैं सेवन से स्टार्ट होते हुए, Ma'am, done. ये भी हो गए थे। Ma'am, yes. You have done all these questions? Ma'am, yes. Okay, then it's fine. अगर हमने कर लिए थे, so then we are coming to our revision sheet. Revision sheet पे आ जाओगे। ठीक है? अब हम पहले रिवीजन शीट से फन विद मैग्नेट के क्वेश्चंस उठाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपका जो एग्जाम पैटर्न है, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आने हैं वो इसी से ही आने हैं, ठीक है, रिवीजन शीट और असाइनमेंट से। सो डू इट केयरफुली, ठीक है। सो इसके लिए आ जाओ, ए सेक्शन से 38 क्वेश्चन हम स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 38, अक्षम पुरी फ्रॉम 6A, अक्षम पुरी 6A। So question is, name the natural magnet. Name the natural magnet. नेचुरल मैग्नेट का नाम बताओ। Thirty-eight number question in your revision sheet. Yes, बेटा। क्या है बेटा? नेचुरल मैग्नेट हो गया तो अर्थ अपने आप मिलता है, मैन मेड नहीं है, हमने नहीं बनाया। मैग्नेट का क्या नाम है जो अपने आप अर्थ में मिलता है, हमें बनाने की जरूरत नहीं है। मैम, टाइम। नहीं बेटा, चलो बैठो और इसको लिखो, ठीक है, इसका आंसर लिखो, आप सभी लिखो आप, मैग्नेटाइट। एवरीवन नोट डाउन, आंसर सभी नोट करो। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, सहज आ जाओ, ए सेक्शन से सहज। Out of steel and stainless steel, which shows magnetic properties. देखो दोनों में स्टील वर्ड आ रहा है, स्टील कह रहे हैं, एक हम कह रहे हैं स्टेनलेस स्टील, ठीक है। घरों में बर्तन होते हैं वो ज्यादातर स्टेनलेस स्टील के होते हैं,
और जो अगर आप ड्रेनेज की कुछ पाइप्स देखोगे पतली पतली, ठीक है, स्टील की बनी हुई है, उनका टेक्सचर, उनका जो मोटापा है सब वो डिफरेंट होता है। तो आउट ऑफ स्टील एंड स्टेनलेस स्टील कौन सी जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है? Yes, Sahaj is there. Ma'am, no, she is absent. Sahaj is absent. Then Gitika is present. Ma'am, yes. Yeah. So what is the answer? Ma'am, steel. Why steel? Yes, you are right. It's steel, but why steel? रीजन है बेटा, स्टील किसका बना होता है? आयरन, मतलब लोहा। एक तो आयरन का बना होता है, दूसरा किसका बना होता है? कार्बन। सिर्फ दो चीजें हैं इसके अंदर। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट स्टील, एवरीवन नोट डाउन दिस, if we talk about steel, stainless steel, स्टेनलेस स्टील जो है अकेला सिर्फ इन दो चीजों का नहीं बना होता, उसमें और भी चीजें होती हैं। आयरन भी है थोड़ा सा, ठीक है, लिटिल बिट, ओके। देन इसमें अगर हम आयरन की जगह इट्स बेटर वी राइट डाउन स्टील, जस्ट स्टील, निकल एंड क्रोमियम। So that's why it show no magnetic property. इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं। अच्छे से सॉल्व करो इसे, ऐसे लिखो जैसे लिखवाया है। Any area of discharge and disney. These are the important questions. So now coming to 40th question, section से अंशु कुमारी from B section. Regions of strongest magnetism in a magnet. And poles. Poles. Yes, sit down beta. So everyone note down the answer of 40th is poles. हमने इसका एक्सपेरिमेंट भी किया था, हमने देखा था जब हमने मैग्नेट जो है आयरन फिलिंग्स के पास लेके गए थे। सो कहां पर अटैच हुई थी सारी? यहाँ पर एक हीप बन गया था दोनों तरफ। So these are the poles. Now coming to 41 question, and for this B section से आ जाओ। नवप्रीत कौर B section नवप्रीत कौर। Absent. रमनदीप कौर 27th row। Absent. तनवीर सिंह। What is the answer of the first? Name the pole in blue color of magnet. मैंने आपको एक तरीका बताया था कैसे याद करेंगे हमसे। Ma'am, South Pole. हाँ, तो ब्लू कलर में यू आ रहा है, और अगर हम नॉर्थ साउथ की बात करें तो उसमें से किसमें आता है? साउथ में। और हमें रेड वाला याद करने के लिए आर याद करना है, दैट इज प्रेजेंट इन बोथ रेड एंड नॉर्थ। ओके, दैट्स गुड। Now coming to 42 question, and for this C section पे आ जाओ। दमनजोत कौर। Ma'am, north, south. यस, नॉर्थ साउथ, अभी जस्ट हमने किया नॉर्थ साउथ। I'm not writing. Now 43 question, if we break a magnet into 3 pieces, how many poles do we get in magnets? So for this C section से नीति का आ जाओ।
Yes, beta, what is thought process? मैम 6. 6 6 क्यों होंगे बेटा? मैंने लास्ट टाइम बताया था पोल्स तो उतने रहते हैं, बढ़ेंगे थोड़े ना। ऐसा तो नहीं हम ब्रेक कर देंगे, ब्रेक इट इनटू मेनी पार्ट्स, मैग्नेट के पास 2 ही पोल रहेंगे, 4 तो नहीं होंगे, 5 भी नहीं होंगे, so they have only 2 poles. Okay, sit down. Now coming to 40 A section से आ जाओ। प्रणव परवल, Pranav is there? Yes. So beta, question is, unlike poles of magnets dash each other. मैम attract. Yes. Unlike means like if we say north and south are facing each other, so they get attracted. Yes, attract. Sit down, beta. To attract each other. Then come to 45. Sartaj Singh, A section. Sartaj Singh. So region of the magnet where its maximum magnetic force can be felt. मैम मैम it will have Where यहाँ पर सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स जो है वो हमें फील होगी मैग्नेट की। कहाँ पर होगी? अगर हम मैंने अच्छा चलो ये बताओ, ये मैग्नेट है और यहाँ पर मैंने बहुत सारी आयरन फिलिंग्स रखी है, लोहा जो है ना वो रखा है। अब बताओ कहाँ पर ज्यादा अट्रैक्ट करेगा? हाँ, बीच में करेगा, सेंटर में करेगा या साइड में करेगा? साइड्स में करेगा ज्यादा। तो इसका मतलब कहाँ पर ज्यादा फोर्स हुई, बीच में हुई या साइड में हुई? और वो जो साइड्स है उनको क्या कहते हैं? आंसर इज पोल्स। नोट डाउन। Coming to 46 question. Ekam Singh from B section. Ekam Jot Singh. I'm absent. Okay. Then आ जाओ Jaskirat Singh. So beta, next question is for you, 46. What happens when a magnet is heated? Ma'am, it will Then demagnetize, है ना? Yes. Yes, sit down beta, that's correct. Demagnetize, yes. Next is question number 47. Sir, Sukhman आ जाओ, Sukhman B section. Ma'am, absent. Harmandeep Singh. Present. So 47th question is, can a magnetic pole, North Pole, exist without a magnetic South Pole? सिंपल वे में क्वेश्चन पूछूं, क्या कोई मैग्नेट ऐसा हो सकता है जिसमें सिर्फ नॉर्थ पोल ही हो, साउथ ना हो, या फिर साउथ हो तो नॉर्थ ना हो? No. तो दैट इज द क्वेश्चन कि कोई ऐसा मैग्नेट हो सकता है जिसके पास नॉर्थ पोल है लेकिन साउथ पोल ना हो। सो आंसर No. मैग्नेट होगा उसके पास हमेशा दोनों पोल्स होंगे। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ होगा या साउथ होगा, साउथ होगा या नॉर्थ होगा। ठीक है, सिट डाउन बेटा।
अब आ जाओ लास्ट पेज निकालो जिसमें आर से जो है क्वेश्चंस है, आर नंबर, आर अल्फाबेट सॉरी, एकदम लास्ट चले जाओ आर पे। तो सी सेक्शन से साजन वर्मा। So question is what happens if two similar poles of two magnets bring close to each other? अब मेरे पास ये दो मैग्नेट्स हैं, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ। If I bring them close to each other, what will happen? क्या होगा? Ma'am, it will attract. They will repel each other. So answer is they will repel each other. That is the answer of R का first part. Now coming to second part. Sit down, beta. So second part के लिए आ जाओ. I mean, our worksheets, our question is of skeletal system diagram. Skeletal system. आपके उसमें फन विद मैग्नेट से कहां पर है ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन? देखो जरा, ये वैसे होना चाहिए जहां पर वो शेडो वाला है ना डायग्राम एक बना हुआ, उसके जस्ट बाद ये वाला जो क्वेश्चन है इसके बाद होना चाहिए। इस It will demagnetize. itu lala. Ma'am, from I part. आई पार्ट में आपके ये वाला क्वेश्चन, चलो आई पार्ट करके कर लो, मगर इसको कर लो, क्वेश्चन इज सेम है ना। क्वेश्चन यही है ना, व्हाट हैपेंस इफ टू सिमिलर पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स ब्रिंग क्लोज टू ईच अदर। Yes. नाउ कमिंग टू बी पार्ट ऑफ दिस, चलो आई पार्ट है जिसको आई कर लेती हूँ मैं यहाँ पर आपके उसमें। तो कमिंग टू इसका बी पार्ट, सिमिलर पोल्स ब्रिंग क्लोज टू ईच अदर, क्या होगा? गुरकमल सिंह फ्रॉम सी सेक्शन, गुरकमल सिंह। So B part had two dissimilar poles. Now here poles are dissimilar. Bring close to each other. What will happen? क्या होगा बेटा? देखो Repel. साउथ जो है नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ साउथ की तरफ है, दोनों डिसिमिलर है, अनलाइक है, क्या होगा? Ma'am, repel each other. ऊपर वाले में क्या होगा जो ऊपर एक बनाया हुआ है मैंने, फिर इसमें क्या होगा? अगर साउथ साउथ और या नॉर्थ नॉर्थ आमने सामने होंगे, वहां पर आपस में जाएंगे, दे विल अट्रैक्ट। Ma'am, no, ma'am, repel each other. Then why here it's repulsion? तो यहाँ पर रिपल्शन क्यों है? ये तो दोनों अलग है, साउथ नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, नॉर्थ साउथ की तरफ जा रहा है। These are unlike poles. और unlike poles क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते मैं हैं। attract. आंसर इज they will attract each other. ठीक है, सिट डाउन बेटा। Attract each other. Okay? They will attract each other. Coming to C. If magnet is hammered, Tanveer Singh from A section. If magnet is hammered, क्या हो जाएगा अगर उसे जोर से जो है वो Ma'am, it lose their magnetic properties. lose its magnetic property, or we can say it get demagnetized, है ना? Can get demagnetized.
एवरीवन नोट डाउन. अब आ जाते हैं इसके नीचे क्वेश्चन. इफ देयर इज नो मार्किंग ऑन अ बार मैग्नेट, how will you find out at each ends of at which ends the north pole and the south pole are located? अब मैं आपको कोई मैग्नेट देती हूँ. ठीक है, ये मैग्नेट है लेकिन हमें नहीं पता नॉर्थ पार्ट कौन सा है, साउथ कौन सा है. इसमें कोई ब्लू रेड कलर की मार्किंग नहीं है. बट वी हैव टू फाइंड आउट which end is north and which end is south. So how can we do that? कैसे पता चलेगा, क्या कर सकते हैं हम? कौन बता सकता है? हैंड रेज करो पहले. Who can tell me? हमने एक्सपेरिमेंट किया था. Yes, ए सेक्शन से सेकंड लास्ट बेंच कॉर्नर गर्ल आ जाओ. Ma'am, we can find it marking by its magnetic properties. Yes, magnetic property. How can we find out which end is north and which end is south? Ma'am, we can hang a magnet and the which pole will be in the south, it will be the north pole, and the pole which will be in the south, it will be south pole. Okay. So can we do one thing? Can we bring one magnet, bar magnet? ठीक है, एक बार मैग्नेट लेते हैं जिसकी मार्किंग हमें पता है. Okay? We know where it's north, where is south. If we bring close to this magnet, okay, इस साइड पे लेके आते हैं. If it's showing attraction, so it means here is north. If it's showing repulsion, that means here is south. है ना? ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं. Yes. By using this method, we can find out whether a magnet is having north or south end at this end. ठीक है? So this is how we can find out. So note down everyone. सब diagram ऐसे बनाओ. Everyone note down. पहले ऐसे डायग्राम बनाना है. Any other question coming in your No. Bring bar magnet bracket में with defined south poles जो ये है, close to the magnet whose north and south pole needs to be located. ठीक है? क्या आ जाएगा? फर्स्ट पॉइंट ये आ जाएगा. सेकंड पॉइंट यू कैन नोट डाउन. अगर उसको पास लेके आएंगे, if south pole of defined bar magnet shows attraction or repulsion at one end, then we can find respective
ये दिखाएंगे, ठीक है। अब इसमें हमने दो डायग्राम बनाने हैं, पहले ये कर लो, देन वी विल ड्रॉ इट। इवन यहाँ पर आप ब्रैकेट में और करके नॉर्थ पोल भी कर दो, एक ही बारी में खत्म हो जाएगा, दो लाइंस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साउथ पोल के साथ ही ब्रैकेट में लिख लो और नॉर्थ पोल, कोई भी पोल लेके आ सकते हो आप इसका, नॉर्थ और साउथ। डन। Yes. Yes. अब इसके आगे अपने डायग्राम बनाना है। ये अगर ये जो हमारी बाल मैग्नेट है, इसके साथ जो है यहाँ पर रिपल्शन दिखा रही है, सो वी कैन से इट इज साउथ पोल। और सेकेंड डायग्राम, it is showing attraction, so we can say it is a north pole. So this is how we can find out whether a magnet is having north or south pole at this end. Is it done? Yes. Okay, so it's fun with magnet का I think एक last question रह गया है. The question is, what will happen to the poles of a magnet if it is broken into two? Who will tell me? Raise hand. What will happen to the magnet? Okay, sorry, happen to the poles of a magnet if it is broken into two? क्या होगा? Let's understand this. पहले समझते हैं. ये हमारे पास एक मैग्नेट है, ओके? This is magnet we have. अब हम इस मैग्नेट को ब्रेक करते हैं. सपोज कर लो मैं यहां से ब्रेक कर, आई एम ब्रेकिंग इट फ्रॉम हियर, ठीक है? इसके साउथ पोल से मैंने इसको ब्रेक किया, इस पोल को. अब जो वो मेरे पास एक नया मैग्नेट आएगा, उसको क्या होगा? व्हाट विल हैपन? कुछ होएगा क्या? उसके पास सिर्फ नॉर्थ पोल ही आएगा या साउथ पोल ही आएगा? व्हाट डू यू थिंक? अगर मैं इसको ब्रेक कर दिया, इफ आई हैव ब्रोकन इट इनटू लाइक दिस, तो
I get it like this. सब ध्यान से देखो इसे. या मुझे ये ऐसा मिलेगा? यस, ऐसा हो जाएगा? यस और नो? बताओ, ए सेक्शन से आ जाओ कीरत कुमार. यस बेटा, अगर मैं मैग्नेट को उसके पोल से ब्रेक करती हूँ, ठीक है, उससे जो है मैंने जो है साउथ पोल से ब्रेक कर दिया, तो मुझे एक साउथ पोल मिलेगा और एक ऐसा मिलेगा. यस, मैम नो. क्या मिलेगा फिर मुझे? मैम साउथ एंड नॉर्थ. तो ये वाला तो हमें कहीं नहीं मिलेगा. इट्स रॉन्ग, इट्स टोटली रॉन्ग. ठीक है, दैट्स गुड. सो व्हाट आई गेट, सो आई शो यू. इंस्टेड ऑफ दिस आई एम मेकिंग इट हियर that two magnets. Okay, now here each magnet act as a individual magnet, that is having both north and south pole. ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने अगर पोल से कट कर दिया है तो वहां पर जो है सिर्फ वही होगा, सिर्फ साउथ पोल ही आएगा. नो, सो इट इज नाउ बिहेविंग एज अ कंप्लीट मैग्नेट. सो दिस इज व्हाट वी गेट, two magnets with their two poles. ठीक है, so that is the correct way. So इसका आंसर लिखो. each piece of magnet each piece of magnet act as each piece of magnet act as complete magnet. Each piece of magnet act as complete magnet. और जितना आप ऐसे डायग्रामेटिकली करोगे बेटा उतना अच्छा होता है. It shows that you understand the concept. इससे हमें ये पता लगता है कि आपको समझ आ गया. You can easily now tell this through your diagram. Okay? So this is all revision we have done for the Conway magnet. हमने assignment कर लिया. And I hope now it is clear to everyone what is Conway magnet. Is it clear? कोई doubt है? Do ask me. Raise your hand if you have any doubt. Yes? Any doubt in this chapter? No. So now let's take few questions from light, shadow and reflection. Assignment में बेटा आपके एक डायग्राम वाला है, ठीक है, जिसमें हमारे एक्लिप्स का दिखा रखा है. You can see this figure, ये वाली. Take out this. अब इसमें हम पहले बाद में करेंगे, पहले हम एक चीज करते हैं. ओके, एंड यू हैव टू टेल मी कि हो क्या रहा है यहाँ पर. This is sun. Earth. So in this positioning, which type of eclipse you can observe? कौन सा eclipse होता है जिसमें इस तरह की positioning होती है? Solar eclipse. Solar eclipse. Solar eclipse. Yes. All are saying solar eclipse. Is it right? Yes. Okay. तो सोलर एक्लिप्स में क्या होता है, जो सन की लाइट्स हैं वो अर्थ पे पूरी नहीं पड़ पाती. कुछ लाइट्स जो है, ये देखो मून बीच में आ गया, यहाँ की जो लाइट्स है वो सारी अर्थ पे ब्लॉक होगी, नहीं जाएगी. ठीक है, तो अब जहां पर यहाँ पर इस एरिया में जहां पर सन की लाइट नहीं पहुंच रही डे टाइम में, where person or that people experienced solar eclipse. अब मुझे बताओ सोलर इक्लिप्स में मून का कौन सा फेज होता है?
कौन से फेज में होता है मून? तो इमृत कौर आ जाओ ए सेक्शन से। इमृत कौर, इमृत इज प्रेजेंट? Ma'am, yes. Ma'am, new moon. यस बेटा, New moon day night. न्यू मून। सो एवरीवन इसको बेटा लिखना है सबने। आपको पता होना चाहिए कौन से फेज में मून होता है। न्यू मून, न्यू मून जिसको हम हिंदी में कहते हैं अमावस्या, जिस टाइम हमें नहीं दिख रहा मून बट इट इज प्रेजेंट इन द स्काई। So, because we can't see the moon, but when it is covering this area of sun or some blocking some part of the lights of the sun, तो क्या होगा? हमें सन की वो लाइट्स नहीं दिख रही और हमें जो है वहां से अंधेरा, इतना एरिया जो है अंधेरे में नजर आएगा। ओके, सो दैट इज अ सोलर एक्लिप्स। गॉट इट? Ma'am, yes. तो नाउ इसी का एक ऑपोजिट करते हैं। सबने कर लिया ये? Ma'am, yes. सन बेटा जब भी एक्लिप्स ये सब बनाना है साइज का बहुत ध्यान रखना है। सबसे बड़ा सन होता है, देन अर्थ, देन मून। ऐसा नहीं कि अर्थ से बड़ा मून बना दिया और अर्थ से बड़ा सन बना दिया। ठीक है, साइज पे भी ध्यान देना है, ऐसा नहीं कुछ भी बना दिया। अब ये वाला फेस हमें क्या बताता है? कौन सा एक्लिप्स है ये? Lunar eclipse. ल्यूनर एक्लिप्स। ओके, इट्स अ ल्यूनर एक्लिप्स। इसमें क्या होता है? अब बीच में कौन आ रहा है? अर्थ आ रहा है। मतलब ये रात के टाइम दिखेगा, दिन में नहीं दिखेगा। ठीक है, कैसे दिखेगा? जो सन है उसकी लाइट पड़ती है मून पे, तब हमें मून दिखता है। क्या मून की अपनी कोई खुद की लाइट नहीं है? तो जो अर्थ अगर मून और सन के बीच में आता है, अब जो सन की लाइट मून पे पड़नी थी वो क्या होगी? ब्लॉक होगी ड्यू टू अर्थ। तो अब ये लाइट मून पे पड़ ही नहीं रही। तो अब मून जो कि कौन से फेज में है यहाँ पर? जब अर्थ के इस साइड होता है तो मून कौन से फेज पे होता है? कौन सा फेज है ये मून का? फुल मून, जिसको हम हिंदी में पूर्णिमा या पूर्णमासी कहते हैं। ठीक है, इट्स अ फुल मून, पूरा चांद दिखता है। अब मगर हमें नहीं दिख रहा ल्यूनर एक्लिप्स में, क्योंकि अर्थ बीच में आ गया है सन के, सॉरी सन और मून के। सो ल्यूनर एक्लिप्स। ठीक है, तो ये इस कारण होता है। इज इट क्लियर? सबको क्लियर है? ऐसे अगर ल्यूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स में जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, ट्राई टू ड्रॉ दिस इमेज। ऐसी इमेज ड्रॉ करनी है ताकि जो एग्जामिनर है उसको सामने से पता लग जाए कि आपको ये आंसर आता है। ज्यादा लिखने की नहीं, ज्यादा बनाने की कोशिश करो इसको। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। Yes. बाकी अब ये क्वेश्चन दे रखा है, उसमें कौन सा वाला दे रखा है? पिछले वाली जो हमारी थी सोलर एक्लिप्स, ये वाला बना रखा है। सो व्हाट इज दिस पिक्चर शोइंग? सो यू राइट डाउन सोलर एक्लिप्स। अभी हमने किया है, दिस पिक्चर इज शोइंग सोलर एक्लिप्स बिकॉज मून इज इन बिटवीन। जब मून बीच में है तो सोलर, अगर अर्थ है तो ल्यूनर। ठीक है, अब आता है व्हाट हैपेंस इफ इंस्टेड ऑफ मून अर्थ इज प्लेस्ड इन द मिडल। अब वो कह रहे हैं मून की जगह जैसे हमने यहाँ पर सन अर्थ को बीच में लाया है, तब क्या हो जाएगा? कौन सा एक्लिप्स हो जाएगा ये? Lunar eclipse. तो इट इज राइट डाउन ल्यूनर एक्लिप्स। सी क्वेश्चन है, टेल द नेम ऑफ द फेज ऑफ द मून व्हेन द अबव फिनोमेना हैपेंस। तो कौन से फेज में था जो हमने ऊपर अभी किया था? मून कौन से फेज में? Moon day. इसमें ल्यूनर में फुल और सोलर में न्यू मून। Moon day. तो ये आपको पता होना चाहिए कौन से फेज में है। ठीक है, देन आपका आ जाता है इसमें जो शेडो है।
ठीक है, आई थिंक वी हैव टाइम राइट नाउ। यस, तो अगर शेडो का साइज, चलो इस पे आ जाओ, ये वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये वाला जो डायग्राम वाला क्वेश्चन आपके इसमें वहां पर है, ये वाला बॉक्स वाला शेडो, ये शेडो वाला जो क्वेश्चन है जिसमें लिखा है एनालाइज द गिवन पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। बॉक्स बना हुआ है जिसपे लाइट पड़ रही है। कौन से नंबर पे है? मेरे पास एन पे है, आपके पास कौन सा है? चलो, तो इसमें देखो क्या बना रखा है, दे हैव शोन अस समथिंग, ठीक है, कार्डबोर्ड का बॉक्स है। ओके, ठीक है, ये बॉक्स बना रखा है, ठीक है, यहां से जो है लाइट पड़ रही है, यहां से लाइट है जो कि इस पे गिर रही है, एंड बिकॉज लाइट इस साइड से आ रही है तो इसकी शेडो कहां बनेगी? डायरेक्शन में, तो यहाँ पर इसकी शेडो बन रही है। तो हमारे पास जो शेडो फॉर्मेशन के लिए तीन चीजें वो यहाँ पर है, लाइट सोर्स, फेक ऑब्जेक्ट एंड द लास्ट इज स्क्रीन। तो स्क्रीन भी है, ग्राउंड है, तो जिसपे हमें शेडो फॉर्मेशन दिख रहा है, ठीक है। तीनों चीजें जो शेडो फॉर्मेशन के लिए होनी चाहिए वो तीनों चीजें यहाँ पर है। सो क्वेश्चन इज व्हाट डज द पिक्चर शो? क्या दिखा रही है पिक्चर? तो रेनू फ्रॉम ए सेक्शन, The left side. ओके, तो बी सेक्शन से आ जाओ नरेश कुमार। नरेश है? Yes. Ma'am, shadow. तो इट इज शोइंग शेडो फॉर्मेशन। बेटा सेकंड बताओ, व्हाट वुड हैपन इफ द शोन बॉक्स इज रिप्लेस्ड बाय ग्लास बॉक्स? तो अभी ये जो हमारे पास है कार्डबोर्ड का बॉक्स है, इससे कार्डबोर्ड, अगर मैं इसको नॉर्मल प्लेन जो, अगर हम क्या शीशे का जो होता है वैसा कोई बॉक्स ट्रांसपेरेंट उससे रिप्लेस कर दे तो क्या होगा? क्या ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट शेडो फॉर्म करता है? No. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर? नो शेडो विल बी फॉर्म्ड। लिखो एवरीवन, अगर आप ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर दोगे शेडो फॉर्म नहीं होगी, नो शेडो विल बी फॉर्म्ड। लास्ट इसमें है वेयर डू यू फाइंड द सेम फिनोमिना इन नेचर? नीचे में आपको शेडो फॉर्मेशन है कहाँ देखने को मिलती है? तो इसका एक एग्जांपल जो भी हमने किया है लिखो, सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्स। शेडो फॉर्मेशन ही हो रही है ना, जो डार्क दिखता है हमें, ठीक है। अर्थ की शेडो सन पे पड़ जाती है, सॉरी मून पे पड़ती है तो एक्लिप्स आ गया, ल्यूनर एक्लिप्स। अगर मून की शेडो जो है अर्थ पे पड़ती है दैट इज ल्यूनर एक्लिप्स, सॉरी दैट इज सोलर एक्लिप्स। ओके, so write down lunar and solar eclipse, ठीक है। अब ये जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ वो सभी आंसर देंगे, राइट यस और नो फॉर वेयर शेडो विल फॉर्म और नॉट। वेयर नहीं है, वेदर होगा वैसे, ये शेडो फॉर्म होगी या नहीं होगी, ठीक है। फर्स्ट इज नो ओपेक ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट। Then no. आंसर इज नो, ओपेक ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो शेडो फॉर्म नहीं होगी। बी, नो डिस्टेंस बिटवीन लाइट सोर्स एंड ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट जो है लाइट यहीं पर होती, सपोज सोलो लाइट, तो क्या होता? शेडो फॉर्म होती? No. तो क्योंकि अगर डिस्टेंस नहीं होगा तो शेडो फॉर्म नहीं होगी। अगर मैं यहाँ से लाइट सोर्स ही हटा दूं, यहाँ पर लाइट सोर्स नहीं, ड्यूरिंग नाइट टाइम, अंधेरे में, Then yes. यहाँ पर बेटा ये नहीं लिखा होती लाइट चलती, लिखा नाइट टाइम। नाइट टाइम मतलब डार्क टाइम। कैन यू सी योर शेडो? No. अगर स्क्रीन इज नॉट प्रेजेंट, यहाँ पर कोई जगह ही नहीं है जिसपे शेडो गिरे, तो होगी? No. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट,
जो अभी हमने किया था कि अगर हम इसको ग्लास होगा No. flying rocket, can we see the shadow of flying rocket? Oh. अच्छा, अब इसका आंसर कौन बताएगा? Why we can't see the shadow of flying rocket? 6B से आ जाओ गुरवीर सिंह। 6B से गुरवीर सिंह। Why we can't see shadow? Absent. Okay, absent, तो David सिंह। When distance between two objects is increasing, then step now. Beta, why can't we see the shadow of flying rocket? Because distance will increase. Because distance between object and screen increase too much. ठीक है? So that's why we can't see the shadow of flying object. ठीक है? Sit down. That's good. So we have done revision questions of light, shadow and reflections. We will continue this in next class also. ठीक है? So okay students, take care. And your math class is going to start in few minutes. ठीक है? Thank you, ma'am. Yes, बेटा. ओके, मैं दोबारा से रिवाइज कर रही हूँ. सिट डाउन बेटा. मैं दोबारा से एक फिगर ड्रॉ कर रही हूँ, फिर आप इसको ध्यान से देखो जरा कैसे कैसे हमने किया है. ये आपके पास फिगर थी, ठीक है. ये आपको 10 दिए था, ये भी 10 है. अब मैं सेंटीमीटर नहीं लिखूंगी ताकि शॉर्ट फॉर्म में आपको समझ आ जाए. दिस इज 10, दिस इज 10. ये आपको 8 दी हुई है, ठीक है. ये वाली आपको 8 दी हुई है, छोटी वाली. और ये आपने अभी अभी बताया कि ये 8 है तो ये भी 8 होगी. अभी अभी आपने कैलकुलेट किया है इसको. तो ये कितनी साइड है, ये लंबी वाली कितनी होगी जब अंदर वाली 1.5 है तो ये छोटी वाली कितनी होगी बेटा? 8.5. वेरी गुड. और फिर ये वाली छोटी वाली कितनी होगी? ये बची है ना अभी हमारी 8.5. दिस विल आल्सो बी 8.5 क्योंकि हमने 10 में 1.5 को माइनस किया. वेरी गुड. तो अभी हमने 8.5 एक बार और लिखते हैं. अभी हमारी 8 साइड पूरी हो गई. ऐड करूं सबको. फाइंड द पेरीमीटर. Ma'am, 73 centimeter. 73 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर. आपको ऑप्शन आ रही है डी. Okay. Second question. The perimeter of a regular hexagon having side length equal to 6.5 meter. Last time जब हमने क्लास लगाई थी आपको बताया था regular means all the sides are equal. Okay, hexagon means 6 sides. ऐसा polygon जिसमें 6 sides होती हैं उसको हम बोलते हैं hexagon. Okay. Question number 2. Perimeter is equal to क्या होगा? 6 into side. हेक्सागन की 6 साइड्स होती हैं तो 6 into side. It will be 6 into 6.5. Yes, tell me what will be the answer? Verify करो. 6.5. 6 sides are 30. 39. I'm 39. 9 meter. 39 meter. Okay, आपको डेसिमल लगाना आता है तो इसकी ऑप्शन कौन सी होगी? Yes. Third question. The cost of fencing a rectangular field. Rectangular field. Shape बना लो इसकी जल्दी से. Write everything which is given to you. Rectangular field है आपके पास. Fencing करनी है हमने. Fencing का मतलब आपको मैंने बताया था. We will talk about the boundary. That is the perimeter. ठीक है. Length दी हुई है इसकी 62 मीटर. डायग्राम में लिखो इसको. And 33 मीटर wide. ये इसकी विड्थ दी हुई है.
What will you find? Area or perimeter? जल्दी से निकालो. You know the formula. Yes. B section. Aman Kumar. Section Aman. हाँ जी बेटे, आगे आगे मेरे को बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है. वहीं से बता दो, कोई भी नहीं. माइक के पास आओ. बोला हाँ जी बेटे, रेक्टेंगल की पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 multiply length plus breadth. वेरी गुड. 2L plus B. वेरी गुड. वैल्यूज पुट करो इनकी जल्दी से. एवरीबडी डू इट. 62 plus 33. First you have to find the perimeter. Yes, C section. I can see one hand. Very good. Second bench पे boy, corner boy. और very good. इसके आगे आ जाओ. Everybody do. Ma'am, firstly we have to apply the rectangular formula. 2 multiply L plus B, then we have 2 plus length plus breadth. Length is 66, breadth is 33. It is by adding it, the answer is 95. Then we have multiply with 2. Answer is ma'am 190. Excellent. 190 meter. Right. तो 190 खत्म हो गया या अभी आगे भी कुछ करना है? Ma'am, we have to We have to find the cost of 190 with 16. We have to find the cost. Please find it out. You have to multiply it and find the cost. Rupees 3040. 2020. Rupees 3040. Okay, 190 into 16. रुपीज में आपका आंसर आएगा. 3 और मीटर था, तो आपको 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी ऑप्शन आएगी डी ऑप्शन 3000. कॉस्ट में आपको पता है, अब आप 7th में जाने वाले हो. यू नो टू फाइंड द कॉस्ट वी मल्टीप्लाई इट बाय द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर. ओके. Have you understood everybody बेटा how to find? By reading the पता चल जाता है कि फेंसिंग की बात हो रही है तो हम पैरीमीटर का फॉर्मूला लगाते हैं. कॉस्ट पूछी है तो पैरीमीटर को से कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे. फोर्थ क्वेश्चन, क्विकली डू इट. एवरीबडी विल डू. मैं अभी पूछूंगी आपसे. सेम क्वेश्चन है. इसमें रेक्टेंगल था, इसमें स्क्वायर है. वेरी गुड. स्टार्टेड. इसमें साइड ऑफ स्क्वायर निकालनी है आपको. ठीक है. आपको फॉर्मूला पता है पेरीमीटर का. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? 4 इंटू साइड. फॉर्मूला तो आपको सबको पता है. लेकिन अभी हमें साइड नहीं पता इसकी. हमें नहीं पता कि स्क्वायर की साइड कितनी है. ठीक है. साइड के लिए हमें सबसे पहले पैरीमीटर ढूंढना होगा. पहले लिखो यहाँ पे जो दिया हुआ है. टोटल कॉस्ट आपको दी हुई है. टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग. ये आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है. राइट द स्टेटमेंट ऑल्सो. टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आपको दी हुई है. उसको लिखो 4480 रुपीज. 4480 टोटल कॉस्ट दी हुई है. और साथ में आपको 1 मीटर की कॉस्ट भी दी हुई है. कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ फेंसिंग वो भी आपको दिया हुआ है ₹5. ठीक है. तो आप पैरीमीटर कैसे निकालोगे? टोटल लेंथ ऑफ स्क्वायर. क्योंकि हमें पूरे की लेंथ तो पता ही है
कॉस्ट पता है हमें कि कितनी फेंसिंग की कितनी कॉस्ट आएगी, वो तो पता ही है आपको। टोटल लेंथ ऑफ स्क्वायर का मतलब क्या है? दैट इज द पेरीमीटर। अभी हमारा पेरीमीटर निकलेगा इसका। वी नो इट कि जो स्क्वायर है उसके सराउंडिंग सारे के सारे पेरीमीटर को जब हम फेंसिंग करेंगे उसकी कॉस्ट हमें दी हुई है, और साथ में 1 मीटर की भी दी हुई है, राइट? तो हाउ विल यू फाइंड? बाय डिवाइडिंग 4480 बाय 35। यहां से आपके पास टोटल लेंथ आ जाएगी स्क्वायर की, कंप्लीट लेंथ जो चारों तरफ उसकी फेंसिंग हो रही है उसकी लेंथ हमारे पास आ जाएगी। प्लीज फाइंड आउट कितने मीटर आ रही है। वेरी गुड, लोएस्ट टर्म में करो इसको, कटिंग करो, जरूरत पड़ेगी तो डिवाइड भी करो, नो प्रॉब्लम। रफ कॉलम आपका रेडी रहना चाहिए। डू एवरी कैलकुलेशन इन द रफ। 5 से काटो इसको पहले। वेरी गुड, आई एम वेटिंग फॉर यू। मैं नाम बुलाऊंगी, बैठ के आंसर नहीं बताना किसी ने, कई बच्चे बहुत फास्ट कैलकुलेशन करते हैं, एंड एवरीबडी शुड डू। वेरी गुड, हाँ मेरे को हाथ दिख रही है। वेरी गुड, जिन्होंने कर लिया दे कैन रेज देयर हैंड्स। 4480, ओके गुड गुड, अपॉन 30। जो हैंड जी का निकल गया है जिन्होंने काट लिया इसको, वेरी गुड। तो 128 आ रहा है आंसर, 128। Yes, 128 आ रहा है। तो मतलब पेरीमीटर आपको पता चल चुका है, इक्वल टू 128 मीटर। पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड, फॉर्मूला लगा लो इसका। अब आपने निकालनी है इसकी 128 बाय 4, साइड आ जाएगी। हाँ जी, बी सेक्शन, यस। फर्स्ट साइड क्या आ रही है ऑप्शन बेटा? 32. Option C 32. ऑप्शन सी 32। 32 मीटर इज द साइड ऑफ द स्क्वायर। डिफरेंट क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था। बाकी क्वेश्चंस में आप डायरेक्टली पेरीमीटर निकाल रहे हो, फिर कॉस्ट निकाल रहे हो। इसमें पहले से आपको पूरी की पूरी कॉस्ट दी हुई है, बट आपको पेरीमीटर नहीं पता। यू डोंट नो कि स्क्वायर के आसपास टोटल लेंथ कितनी है, वो हमें निकालनी। ओके, उसके बाद हमने साइड निकाली। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्रेम इज गिवन। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्रेम, एरिया गिवन है आपको, and its width is also given. Find the length. Very good. Start. Ma'am, this question is not in our worksheet. आपके और हैं एमसीक्यू इसमें? And there are only 4 MCQs. Ma'am, we are having only perimeter worksheet. Okay, okay, right. No problem. ठीक है, बट आपने एरिया किया होगा ना बेटा क्लास एरिया, तो हम थोड़े से क्वेश्चन एरिया कॉल करो। Yes. एरिया ऑफ स्क्वायर कॉल करो, एरिया ऑफ स्क्वायर। यस, वेरी गुड, साइड इंटू साइड या फिर साइड स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हो। एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है, is equal to what is that? Length into breadth. Multiplied by breadth. ठीक है, एंड अगर आपको कॉस्ट निकालनी हो
कॉस्ट ऑफ पुटिंग ग्रास इन द रेक्टेंगुलर पार्ट, तो आप क्या करोगे, एरिया को कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दोगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपके पास। अभी हम एरिया की बात कर रहे हैं, वी वर टॉकिंग अबाउट कि उसकी कारपेटिंग कैसी होगी, कारपेटिंग के लिए कितना कॉस्ट यूज होगा या फिर उसको ग्रास लगाने में कितना कॉस्ट यूज होगा, दैट। ठीक है, ये भी इजी होते हैं फॉर्मूलाज। चलो एक सिंपल सा पहले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिख लो आप, राइट डाउन, क्या हुआ, अब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। राइट डाउन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्रेम, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्रेम, आपको रेक्टेंगुलर फ्रेम है उसका आपको एरिया गिवन है 1125 स्क्वायर सेंटीमीटर। Area is given to you and width is also given to you. Width, आपको पता है कि width या breadth एक ही बात होती है। Yes. Yes, you know उसकी चौड़ाई कितनी है rectangle की, that is given to be 25 centimeter. Width is equal to 25 centimeter. You have to find the length. ये दो फॉर्मूला बार बार आपके यूज होंगे बेटा हर एक क्वेश्चन में, एरिया में। वेरी गुड, डू इट योरसेल्फ। Area is given to you, width is given to you. You have to find the length. दिया देता। एरिया गिवन है तो आप एरिया का फॉर्मूला लगा रहे हो, इज इक्वल टू एल इंटू बी, लगा रहे हो 1125 इज इक्वल टू एल वी हैव टू फाइंड आउट इंटू 25। How will you find L? लेंथ निकालनी हो तो क्या करोगे, एरिया को विड्थ से क्या करोगे, डिवाइड या मल्टीप्लाई? Divide. Yes, you know it, 1125 upon 25। कर लो इसको, Done. गुड गुड, सबको करने दो बेटा, एक सेकेंड। I'm done. Section. This is called C section. Can you tell me the answer? किया है आपने बेटा? Ma'am, the answer is 45 centimeter. Answer is 45 centimeter. Don't forget to put the unit. Unit is very important. चाहे आप एरिया निकाल लो, चाहे पैरीमीटर, चाहे लेंथ, पूरे के पूरे चैप्टर में यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कॉस्ट की बात हो रही है तो रुपीज, ओके, कॉस्ट है तो रुपीज, अदरवाइज मीटर, स्क्वायर मीटर, सेंटीमीटर, जो जो आपको गिवन है वही वही सेम सेम आपने आंसर में भी यूज करनी है। राइट, वन मोर क्वेश्चन ऑफ एरिया ओनली। Write down the question. Why? 5 square flower beds of side 1 meter, side 1 meter. Note down the question also. Are dug down and understand also.
गंदगी साफ करी वाली। On a piece of land, on a piece of land, 5 meter long and meter wide. Understood the question also? What is the area of the remaining land? What is the area of the remaining land? Okay, बचा हुआ land है उनके अलावा that you have to find out. Remaining land. क्वेश्चन नोट डाउन कर लो. क्या फाइंड करना है? क्वेश्चन नोट डाउन कर लो. वी विल रीड वंस मोर. करते हैं अभी इसको. कार वाली जी बचे Question is 5 square flower beds, each of side 1 meter. Flower beds. Okay. छोटी फ्लावर बेड्स हैं 1 मीटर लेंथ के. वो हमने 5 जो है वो बनाने हैं. किसके अंदर बनाने हैं? लैंड जो कि 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड है. ठीक है. एक रेक्टेंगुलर लैंड है हमारे पास. रेक्टेंगुलर जगह है. उसकी 5 मीटर लेंथ है और 4 मीटर ब्रेड्थ है. उसमें से हमने 1-1 मीटर वाले स्क्वायर फ्लावर बेड्स बनाने हैं. फ्लावर बेड्स मतलब छोटी छोटी जगह हमने यहाँ पे खोदी है, डिग की है, जिसके अंदर हमने फ्लावर्स लगाने. ठीक है. ये 5 स्क्वायर उसके अंदर हमने ऐसे ऐसे बना लिए और सबके जो साइड कितनी है 1-1 मीटर है. एवरी स्क्वायर इज अ 1-1 मीटर. 1 मीटर 1 मीटर. फिगर ड्रॉ कर लो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए. रेक्टेंगल था हमारे पास. रेक्टेंगल के अंदर हमने स्क्वायर के छोटे छोटे डिक कर रही है, जगह बनानी है छोटे छोटे स्क्वायर्स की, जिसके ऊपर हमने फ्लावर्स लगाए. दे आर आस्किंग व्हाट इज द एरिया ऑफ रिमेनिंग लैंड. रिमेनिंग मतलब फ्लावर छोड़ के ये बचा हुआ बाकी का. रिमेनिंग लैंड यू हैव टू फाइंड आउट. रेक्टेंगल में से निकाल दे तो बाकी कितना बचेगा. इस ट्राई करो इसको. क्यों हुए ऐसे बच्चे तो? सी सेक्शन बेटा. खुशी पढ़ के बताओगे बेटा. यस सोच के बताओगे इसमें. मैम. यस सोच के बताओ मेरे को क्या करना है इसमें. चाहिए तो. मैम 1 into 5 equals to 5 meter. 5 meter multiplied by 4 equals to 20 meter. ओके सिट डाउन. सिट डाउन. सिट डाउन. सबसे पहले हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है. ठीक है. राइट डाउन एरिया ऑफ रेक्टेंगल. और एरिया ऑफ रेक्टेंगल में आपको पता है L into B होता है. इंटरनेट बंद कर दे. Okay. L is given to you, B is given to you. 4 square meter. Okay. So it will be equal to 20 square meter. ये आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया. बड़ा वाला जो आपके पास पूरा का पूरा रेक्टेंगल एरिया था वो हमारे पास आ गया. अभी हम क्या करेंगे आगे. उनमें से छोटे छोटे हमने स्क्वायर जो थे पीसेस थे वो हमने निकाल लिए.
ठीक है, तो उनके एरिया को हम माइनस करेंगे इसमें से। आपने बताया मेरे को 5 into 1, क्यों किया हमने 5 into 1 बेटा, बताओगे मेरे को? Why we have done 5 into 1? ओके, बैठो बैठो आप। क्या हुआ, बस आपने पढ़ के मेरे को बताया है ना। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। एरिया ऑफ 1 स्क्वायर, एरिया ऑफ 1 स्क्वायर का एरिया कितना होगा? दैट इज साइड इंटू साइड, पता है आपको, S इंटू S, दैट इज 1 into 1 स्क्वायर मीटर। 1 into 1 तो 1 ही आएगा ना, लेकिन हमारे पास कितनी है, 5 है। वी हैव 5 स्क्वायर्स, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करोगे। एरिया ऑफ 5 स्क्वायर्स इज इक्वल टू 5 into 1 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर मीटर। इसलिए हमने 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया। रीजन पता होना चाहिए आपको। हमारे पास जो स्क्वायर वाले अंदर बने हुए हैं पार्ट्स, वो सारी सबकी लेंथ जो है 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर बराबर के हैं वो, इसलिए हमने एक का निकाला और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 5 स्क्वायर मीटर। तो अभी रिमेनिंग लैंड कैसे आएगा, एरिया ऑफ रिमेनिंग लैंड, बचे हुए लैंड का एरिया हम कैसे निकालेंगे? यस, वेरी गुड, थिंक इट। बी सेक्शन, पलक, बचे हुए लैंड की कैसे एरिया निकालेंगे बेटा? द होल क्वेश्चन फॉर यू। अभी बताओ इसको कैसे करोगे आगे? ओके, सिट डाउन, सिट डाउन, ध्यान से सुनो अभी। बी सेक्शन से मिस टेलिंग में रिमेनिंग एरिया कैसे आएगा? तो क्लियर ऑल ऑफ यू, सामने देखो बेटा, आपके पास पूरा का पूरा रेक्टेंगल है, पूरा रेक्टेंगल था, उसका हमने एरिया निकाल लिया। उसमें से हमने छोटे छोटे सारे स्क्वायर जो थे उनको हमने उनके एरियाज को माइनस कर दिया। ओके, एक किया है ना हमने, उसको निकाला है, वहां पे मिट्टी खोदी है वहां पे, तो वहां पे जो आपके पास फुल स्क्वायर था, फुल रेक्टेंगल था, उसमें से हमने 5 स्क्वायर को बाहर निकाल लिया। बाकी जो पार्ट बचेगा वो आपने रिमेनिंग पार्ट हो गया। तो रिमेनिंग पार्ट का मतलब क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ 5 स्क्वायर, पांचों के पांचों स्क्वायर को उसमें से माइनस कर देंगे। हैव यू अंडरस्टूड नाउ? हमने पांचों के स्क्वायर को कितना आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपके पास 20 था और 5 स्क्वायर का एरिया 5 था। अभी अभी आपने ऊपर निकाला 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। नोट डाउन करो इसको और ये चीज लिखो उसके साथ, राइट डाउन दिस पार्ट। किस टाइप के आएंगे, टोटल जिसे हमने माइनस कर दिया। पूरे के पूरे चैप्टर में आपके पास ऐसे वाली क्वेश्चंस हैं। आपको जब एरिया वाला मॉड्यूल मिल जाएगा, ये उसी में से क्वेश्चंस हैं। ओके, यू कैन डू फ्रॉम देयर आल्सो। नोट डाउन कर लिया सबने बेटा? Yes. ये बच्चे लिखते हैं, अभी आई एम वेटिंग फॉर देम। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो मैं फिगर बनाऊंगी वो आपने भी ड्रॉ करनी है बेटा, ठीक है, क्योंकि विदाउट फिगर ड्रॉ द फिगर फर्स्ट, डायग्राम ड्रॉ करो।
क्वेश्चंस दी हुई है, ये आपको 300 मीटर दिया हुआ है, दिस वन इज 200 मीटर। ध्यान से बनाना है इसको, काउंट करके कि कितनी साइड्स हैं। दिस इज 260 मीटर, दिस इज 200 मीटर। ओके, साइड पे आपके पास 300 मीटर, दिस इज 300 मीटर। ओके, एंड जो स्ट्रेट लाइन है 80 मीटर, दिस वन 80 मीटर। 21 क्या इस वीडियो को बनाना सबको दी हुई है। काउंट करो, हाउ मेनी साइड्स आर देयर। 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं आपके पास। स्केल की जरूरत नहीं, इसमें नॉर्मल पेन से बना सकते हो, थोड़ा प्रेस करके उसको करो नाइसली। और बीच में आपके पास एक रेक्टेंगल है। ओके, ये रेक्टेंगल की भी आप दिस इज 80 मीटर एंड दिस इज 100 मीटर। नीचे वाला 100 मीटर है, ऊपर वाला 80 मीटर है। इसके साथ के कुछ क्वेश्चन है इस फिगर में से। फाइंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, पूरी की पूरी जो आपकी बाउंड्री, लेंथ ऑफ द बाउंड्री बाहर वाला आपका पार्क है, दिस वन, ये पूरा का पूरा आपका पार्क है। आपको टोटल लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। यस, हाउ विल यू डू? Find the length of the boundary of the park. A section, Harish Kumar. मैम यस। हाँ जी, बताओगे इसकी क्या आएगी बेटा, क्या करना है इसके अंदर, आंसर तो भी निकालना है आपने भी। Tell me what will you do here? मैम सम ऑफ ऑल द साइड्स। Sum of all the sides will be the length of the boundary. निकालिए क्या आपने? मैम नो। Okay, चलो, okay, good. Sit down. Find out. Do it nicely. बहुत सारे नंबर्स हैं, उनको काउंट भी करना है आपने। 200 प्लस 260 प्लस 200, ऑर्डर में करो इसको। 300 प्लस 80 प्लस 300, काउंट करो। 1 2 3 4 5 6, ऑल 6 साइड्स यू हैव रिटन। ओके, जब आप साइड्स को लिखते हो उनको काउंट कर लिया करो और ऑर्डर में चला करो। ये नहीं कि पहले कोई भी लिख ली, पहले ये लिख ली, फिर वो लिख ली, फिर ऊपर चले गए, फिर नीचे चले गए। नॉट लाइक दिस, ऑर्डर में चलो ताकि कुछ मिस ना हो, क्योंकि ये बड़ी फिगर है। एक ही नंबर अगर मिस हो गया तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। ओके, गुड। यस, ई सेक्शन से सेकंड बेंच। यस, जिसका हाथ खड़ा हो रहा है आगे आके बताओ आंसर। बेटा कितना आ रहा है? मैम 1340 मीटर। Yes. 1340 मीटर। इम्पोर्टेंट क्योंकि ये पैरामीटर है। वेरी गुड बेटा, सिट डाउन। पार्ट किसी का बी पार्ट है। फाइंड द कॉस्ट of fencing. Find the cost of fencing at the rate of ₹20 at the rate of ₹20 per meter.
क्वेश्चन कॉपी डाउन करो, क्वेश्चन भी लिखो और उसका आंसर भी निकालो। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग यस, कॉस्ट सबको निकालनी आती है। सेक्शन बलजोत सिंह, मैम एब्सेंट। दिलप्रीत सिंह, बी सेक्शन। करो करो, हाँ करके आगे आओ। बाकी बच्चों भी करो इसको कंप्लीट। Waiting for him. दिलप्रीत बताएगा आगे आके। मैम 26,800। मेरे पास ठीक है, आपको क्या किया, मल्टीप्लाई किया 1340 को 20 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आंसर आ रहा है। किस किस का आ रहा है? वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है बेटा, प्लीज सिट डाउन। रुपीज 26800। राइट डाउन रुपीज इन द बिगनिंग, क्योंकि आप कॉस्ट की बात कर रहे हो। कोई भी टर्म हम बिना यूनिट के नहीं लिखेंगे। आया 26,800, किस किस का आया? काफी बच्चे के लिए होगा। मैं 8.50 प्लस सी पार्ट सेम, इसी से रिलेटेड है, सेम क्वेश्चन का। अंदर आपके पास ये रेक्टेंगुलर जो है, दिस इज फ्लावर बेड, फ्लावर बेड, ठीक है। अब आपको शेप मैंने नहीं बताया कि इसमें क्या है, स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, वो आपको खुद देखनी है। राइट ऑन द क्वेश्चन, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ फ्लावर बेड। आपको खुद गेस करना है कि वो कैसी फिगर है और कौन सा फॉर्मूला लगेगा। Get yourself. किरत कुमार 6A। मैम डन। ओके, कौन सा फॉर्मूला लगाया, रेक्टेंगल का या फिर स्क्वायर का? मैम रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, व्हाई रेक्टेंगल क्यों लगाया है? Because its sides are not equal. बिकॉज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर डिफरेंट। लेंथ आपको दी हुई है 100 और 8,000 स्क्वायर मीटर, दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया। नाउ राइट डाउन इसका, we have to find the cost of, write down 3 part, find the cost of manuring करनी है of find the cost of manuring the flower bed, उसकी कॉस्ट आपको दी हुई है। कॉस्ट इसकी दी हुई है 50 पर स्क्वायर मीटर, एट कॉस्ट ऑफ 50 पर स्क्वायर मीटर।
Do it carefully. Yourself. डिस्कस मत करो एक दूसरे से. एग्जाम में आप खुद करोगे ना. Do it. Okay. तो आपकी कॉस्ट निकालनी है इसकी. आई विल कॉल द नेम. सब बच्चे अपना अपना करेंगे. बी सेक्शन. बलराज सिंह. बी सेक्शन बलराज सिंह. आपने निकालिए बेटे आंसर. Ma'am, he is doing. ये कैलकुलेशन तो बेटा कितने नंबर्स हैं. वेरी गुड. ओके बलराज आगे आओ. को ये बताओ किसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो आप. आंसर तो चलो कोई बात ही नहीं निकला. तो कॉस्ट निकालने के लिए किसको कौन से नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है. Ma'am, 50. 50 into Ma'am, 8,000 से. यस 8,000 से मल्टीप्लाई करने. बहुत सिंपल नंबर है. और देर लगी है आपको करने में. मैम 4 lakhs सर. 4 लाख. यस 8 5 40. सारी जिक्र करा दो. 1 2 3 4. 1 2 3 4. ठीक है. काउंट भी कर लो साथ साथ में. तो ये आपकी टोटल कॉस्ट आएगी. ओके तो ये भी आंसर आपके पास रुपीज में आएगा. ओके सिट डाउन बेटा. वेरी गुड. सिट डाउन. ओके एक और क्वेश्चन है बेटा. मैं फिगर ड्रॉ कर रही हूँ. आपको उसका एरिया निकालना है. ओके और आपको ये भी पता है कि इसको हम कंप्लीट करते हैं फिगर को. उसके बाद करते हैं एरिया निकालते हैं. फाइंड द एरिया. ओके आई एम जस्ट ड्रॉइंग द फिगर हियर. आप भी ड्रॉ करो इसको लाइक दिस. खेल के साथ नहीं है. ड्रॉ करो इसको. Okay. It is like this. Dimensions आपको दी हुई है. ये आपके पास 3 है. This is 8. This is 3. This is 2. और यहाँ पे ये join है. यहाँ पे 3 है. और नीचे वाला पूरा का पूरा आपको 6 दिया हुआ है. Find the area of the figure. Very good. तो इसको कंप्लीट करके फिगर तो कैसे करते हो. मल्टीप्लाई करना है ना. किसी को आता है ये क्वेश्चन. हाथ खड़ा करो.
मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे रही हूँ, इसको फिगर को कंप्लीट करो, ठीक है, डॉटेड से कंप्लीट करो इसको, यहाँ पे इसको भी कंप्लीट करो डॉट से। तो आपको ये पता चल रहा है कि ये आपके पास 2 आ गया, उसके सामने वाला ये रेक्टेंगल है, ओके। और नीचे आपके पास जो थोड़ा सा बड़ा है, नीचे वाला थोड़ा सा 8 7 है, आपके पास 3 है, तो ये भी आपके पास 3 होगा, ओके। अगर ये 3 है तो ये आपके पास 3 होगा, क्योंकि टोटल आपके पास 6 है। रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? 8 इंटू 3। ये वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? 3 2, ओके। और जो नीचे स्क्वायर है उसका एरिया कितना होगा? दैट विल बी इक्वल टू 3 इंटू, पूरी की पूरी फिगर आपने 3 पार्ट में ब्रेक कर ली है, जिसमें आपको 2 रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं और एक स्क्वायर दिख रहा है नीचे वाला, ठीक है। ये थोड़ा सा मोटा है, डायमेंशंस देखो उसके, ये 3 गिवन है, ये 3 गिवन है, अगर दो साइड इक्वल है तो नीचे वाली भी 3 होगी आपको, ये स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है। इन सबको आपने तीनों को प्लस करके इसका एरिया निकालना है। प्लीज फाइंड आउट कितना आ रहा है। Add them all. What's the area of the whole figure? 39 centimeter square. Okay. 24 plus 6 plus 9. 39 square. Centimeter. तो नहीं है ना, मीटर सेंटीमीटर कोई यूनिट नहीं है, तो आप लिख सकते हो इसमें स्क्वायर यूनिट, ओके। जब कुछ भी यूनिट ना हो तो हम ऐसे करेंगे इसको, ओके। चलो रिवाइज टिल हियर बेटा, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। Bye, ma'am.